Hello and welcome back everyone for the same chapter, The Adventures of Toto. This is from Movements book and the story is written by Ruskin Bond. I had made two videos on this chapter. So this is the last video on this chapter and the story is about to end. In last video we had seen that Toto was mischievous monkey and he always disturbs other animals. That's why he was taken with grandfather on his journey, but he create disturbance there also on the platform. So in this way his behavior was different from all other animals. So when grandmother knew that the Toto is there in the house, he was given a stable to stay there, and there was one another donkey. Her name was Nana. So they were thinking that they will become friend, but what happened is Toto bite the Nana on his ears, on her ears. So that's why they never became friends. So वो friend नहीं बन पाए. Then the writer talks about a treat which is in winter season. He would observe the writer how he take bath and then he follow the same. So वो राइटर को देख चुका था कैसे नहाते. देन ही ग्रेजुअली गोज टू द बाथरूम एंड देन ही टेक बाथ देयर. सो पानी को अच्छे से इंस्पेक्ट करता था पहले वो, वेदर इट इज़ कोल्ड और hot, and in this way he could take bath. And sometime if the water is cold, then he would run away to the kitchen fire just to dry himself. So it was the behavior of Toto. In this way he behaves. So let's see what happened next. So one day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. So एक दिन तो खुद को वो पूरी तरह से बॉईल कर सकता था. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. So one day what happened that there was a kettle in kitchen and it was kept on fire to boil tea. टी बनाने के लिए एक दिन एक बहुत ही केटल रखा गया था, वहाँ पे एक बॉल रखा गया था और उस केटल में पानी डाला हुआ था, पानी गर्म हो रहा था. तो उस हॉट वाटर से टी बनाना चाहते थे उन्हें. तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटो को लगा कि चलो यार कुछ अलग करते हैं आज ट्राई, एंड ही डिसाइडेड टू रिमूव द लीड. और ऊपर का जो लीड है उसने रिमूव करने को डिसाइड कर लिया और उसने ही रिमूव द लीड. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन. सो व्हेन he touched the water, he feel that the water was warm. So he thought it is enough for bath and he got in and he went into the kettle. उस kettle में वो जाता है फिर. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. So उसने क्या करा, उसका head ऊपर रख दिया और पूरा उसका जो other part of the body was in the water. This was just fine for a while until the water began to boil. So पहले तो बहुत अच्छा लगा उसे कि water थोड़ा warm था और उसे अच्छा फील हो रहा था कि थोड़ा विंटर सीजन में कोल्ड है बाहर और उसको थोड़ी हीट फील हो रही थी. तो उसे स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा, बट वंस द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, लेकिन वाटर जब बॉयल होने लगा देन ही फील्ड दैट हीट. सो उसको थोड़ी हीट फील हुई. टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. सो टोटो रेज हिमसेल्फ अ लिटल, थोड़ा ऊपर जाता है टोटो, बट ही फाउंड दैट देयर वॉज कोल्ड आउटसाइड. आउटसाइड तो कोल्ड है और इनसाइड अगर वो जाता है तो उसको हीट लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म था, बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड था. तो ही वॉज इन डिलेमा दैट व्हाट टू डू. उसको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, फिर वो उछल कूद करने लगा वहाँ पे, कभी नीचे कभी ऊपर. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन. सो अप एंड डाउन वो ऐसे जंप लेने लगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ऐसे जंप ले रहा है तो ऊपर उसको कोल्ड फील हो रहा है, नीचे जा रहा है उसको हीट फील हो रही है, तो ऐसे वो अप एंड डाउन करने लगा. For some time until grandmother arrived and hauled him. So then grandmother arrived there and when she observed, she shocked to see that the Toto was in the kettle. Toto जो केटल में था तो उसको बाहर निकाल दिया. हॉल मीन्स क्या, उसको बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल. वो जो हाफ बॉयल हो चुका था पूरी तरह से, उसको हीट ज़्यादा फील होने लगी थी. फिर ग्रैंडमदर ने जैसे देखा उसको बाहर निकाल ली थी उस केटल से बाहर. सो इससे ये पता चलता है कि टोटो जो था ना बहुत ही शरारती था और कुछ अलग चीज़ें करने में इंटरेस्टेड था. जैसे कि अभी जो नीचे से हीट चल रही है उसमें भी उसने
जंप ले ली थी। तो इस प्रकार का ये हमारा टोटो था। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in toto. So the writer says that if there is part in our brain which make us to behave like mischievous, then such a type of part was so much developed in toto का जो ब्रेन था उसमें मिस्चीवियस पार्ट वाला पार्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था, यानी ही वॉज मिस्चीवियस, बहुत ज़्यादा शरारती बन चुका था वो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, और उसको तो हमेशा आदत थी किसी चीज़ को लेना और ऐसे फाड़ देना। ही टीयर्स द थिंग्स इन पीसेस। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट्स टू गेट होल्ड of her dress and tear a hole in it. So whenever any one of his aunt comes to visit him, then he took all his efforts to catch the dress and then he make a hole in it. So उसको कभी भी अगर आंटी आ जाती है कोई घर में तो वो ड्रेस को पकड़ लेता था और उसमें होल बना देता था, यानी सब कुछ ऐसे फाड़ने में, किसी का नुकसान करने में, कुछ अलग चीज़ें करने की उसको आदत हो चुकी थी। So then the writer shares one of the incident when at lunchtime. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. So एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम पे एक बहुत बड़ी डिश बनाई गई थी पुलाव की। पुलाव क्या होता है, जिसमें राइस वगैरह होते हैं, हम वेज बिरयानी कहते हैं जनरली उसे। सो डाइनिंग टेबल के सेंटर में पुलाव रखा गया था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। देन दे एंटर्ड एंड दे कुड सी दैट द टोटो वॉज ईटिंग। टोटो खा रहा था उस राइस को। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड, ग्रैंडफादर शाउटेड इन एंगर। सो गुस्से से ग्रैंडमदर, मैंने ग्रैंडफादर बोल दिया था शायद अभी। माई ग्रैंडमदर शाउटेड इन अ एंगर। सो वो ऐसे गुस्से में चिल्लाई क्योंकि ग्रैंडमदर ने देखा कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के टोटो जो है ना राइस खा रहा है। ग्रैंडमदर को गुस्सा आया, वो ज़ोर से चिल्लाई एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। तो टोटो को भी गुस्सा आ गया, उसने एक प्लेट उठाई और वो ग्रैंडमदर को फेंक के मार दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो फिर दूसरी आंट थी, उसने ट्राई किया, चलो भाई अभी एक को तो मिल गया है प्रसाद, अभी अपन भी ट्राई कर लेंगे। आंट आगे गई, जैसे आगे गई उसने जो ग्लास पानी से भरा हुआ था वो पानी उसके मुंह पे फेंक के मार दिया। ग्लास ऑफ वाटर जो था वो उसको फेंक के मार दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, देन द ग्रैंडफादर केम। अभी ग्रैंडफादर आ चुके थे। टोटो पिक्ड अप हिम sorry Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. Then Toto didn't throw anything when grandfather came. पहले तो उसने ग्रैंडमदर को प्लेट फेंक के मार दी, एक आंटी को ग्लास फेंक के मार दिया, लेकिन जब दादाजी आए तो उसने प्लेट उठाई और पुलाव की और उस डिश को लेके वो खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. So then they went outside and they see that he was sitting on the jackfruit tree. jackfruit की ट्री पे वो बैठा हुआ था और उसके हाथ में वो अभी भी प्लेट थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और वो पूरे दोपहर तक वहीं पे बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो राइस खाने लगा जो पुलाव बनाया हुआ था। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। सो ही वॉज डिसाइडेड टू फिनिश ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट पुलाव। ही वॉन्टेड टू ईट एवरी ग्रेन, सब चावल वो खा जाना चाहता था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम एट हिम, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. So he was already angry on grandmother. The reason was that the grandmother shouted in angry manner. That's why he wanted to take revenge. उसको और गुस्सा आ रहा था और उसने क्या करे फिर, he threw the dish down. So उसने डिश को नीचे फेंक दिया from the tree and chattered with delight, और वो हंसने लगा। जो chattered जो होता है ना, the sound which is made by monkey, monkey जो sound create करते हैं उसे हम chatter कहते हैं। सो फिर उसने चिल्लाया एंड व्हेन ही सॉ दैट द प्लेट वॉज ब्रोकन इनटू 100 पीसेस ही फेल्ट हैप्पी। उसको उसका थोड़ा गुस्सा शांत हो गया क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था ग्रैंड मदर पे। उसने प्लेट नीचे फेंक दी ऊपर से ही और उसके जो पूरे पूरे टुकड़े हो गए वहाँ पे। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। देन राइटर सेज दैट ऑब्वियसली द टोटो वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ पेट that they could keep for long. Why? Because he was doing mischief, he was breaking some instruments, some plates, and he was not behaving well with anyone. So बहुत ज़्यादा नॉटी था वो, शरारती था। तो ऐसा मंकी
रखना उनके लिए अच्छा नहीं था. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, एंड नाउ द ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. ग्रैंडफादर को तो समझ में आ गया था ऑलरेडी. व्हेन ग्रैंडफादर सॉ ही वाज torn the blazers and some ornamental papers, he was happy with his work. But then grandfather also realized that if the same thing he will do in future, then they will get problems. So we were not well to do. यहाँ पे देखो well to do, well to do का मीनिंग होता है wealthy, जो अमीर होते हैं. So they were not wealthy, they were not rich and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpapers. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. So obviously they were not so much rich and they could not afford the फ्रीक्वेंट लॉस, जो हमेशा लॉस होता था, जैसे डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स और वॉलपेपर्स फाड़ देना, फेंक देना, ऐसी चीज़ें का लॉस वो ज़्यादा सह नहीं सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. देन ग्रैंडफादर वेंट टू सर्च द टोंगा ड्राइवर एंड वन डे ही फाउंड आउट हिम एंड ही सोल्ड टोटो बैक टू हिम. और उसको रिटर्न बेच दिया गया जस्ट ओनली फॉर 3 रुपीज़. और इस टाइम पे उसको बेचा गया 3 रुपीज़ में. यानी स्टोरीज में हम देखेंगे स्टार्टिंग में उसको 5 रुपये में ख़रीदा था और लास्ट पे 3 रुपये में बेच दिया. सो यहाँ पे उनको बेनिफिट तो हुआ नहीं, 2 रुपये का लॉस ही होता है. सो ये जो इसकी जर्नी थी टोटो की, उसके ख़रीदने से बेचने तक, इसमें हमने देखा कि टोटो बहुत ही शरारती था. सबको डराने में, एनिमल्स के साथ गलत बिहेवियर करने में, किसी को मारने में, काटने में उसको ज़्यादा इंटरेस्टेड था वो. या कभी कभी खुद के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था, जैसे पानी में उबल के मर सकता था वो. ग्रैंड मदर पर गुस्सा निकालने के लिए उसने फ्लेट भी फेंक दी थी. सो ऐसा जो टोटो था उसने वॉलपेपर्स या कुछ ऑर्नामेंटल पेपर्स को भी टीयर किए थे. सो इसका बिहेवियर जो था पूरी तरह से ये डिसेंट नहीं था, डोसाइल नहीं था, जो ओबीडियंट एनिमल का होता है. सो नाउ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू अस फर्स्ट, इट वाज हाउ वाज द मंकी. मंकी जो था नॉटी था या डोसाइल था, ये पूछा गया था. तो आप बोलोगे कि ये जो था मिस्चीवियस था. सही में हमें ये रियलाइज़ हो चुका है. And in this way the story is ended. I hope you have enjoyed this story. If still you have any problem regarding with this story, you may ask me. So bye bye.